हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कुछ टर्म्स रिगार्डिंग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, देन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके आगे आज हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल Cl2 का, क्लोरीन गैस is nothing but consist of it's a diatomic molecule actually. One molecule of chlorine, it contains two atoms. So this diatomic chlorine molecule, it will get dissociated into its atoms, into its constituent atoms like this. तो Cl2 का यहां पे हो जाएगा डिसोसिएशन उसके एटम्स पे. So in this case the value of delta H of atomization is equal to 242 kilojoules per mole. Means when a chlorine molecule is get dissociate into its constituent atoms, in that case 242 kilojoules per mole, this much amount of it is get absorbed. Remember, enthalpy of atomization is always an endothermic process. So this process is always an endothermic process because heat is always get absorbed, क्योंकि यहां पे हमको बॉन्ड ब्रेक करना होता है. रिमेंबर, जब हम कोई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी लगती है. एनर्जी इज गेट एब्सॉर्ब एंड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर टू बी फॉर्म, देन एनर्जी इज ऑलवेज गेट रिलीज. बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी लगेगी एंड जब न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगा. सो दिस थिंग यू टू रिमेंबर. तो इन केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, in that case there is always absorption of heat. Okay, so it is defined as, it is the enthalpy change accompanying the dissociation of all the gas molecules into its atoms. Obviously these atoms are also in gas phase. In 1 mole of molecules. Yes, you can see this is the stoichiometric equation. इसके आगे तो एक होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 mole of a molecule. So this is the value for it's a 242 kilojoules per mole. This much is the amount of energy that will be needed to break chlorine molecule into its atoms. ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म, या इससे पहले हम इसका और एक एग्जांपल लेते हैं. यू नो दैट मीथेन गैस CH4, it will get dissociate into carbon. Now see, when a single atom is there, they are so present in a gas phase, and then there is a formation of 4 H atoms as well.
and in that case the value of delta H of atomization is 1660 kilojoules per mole. So this is nothing but the amount of energy absorbed in the dissociation of 1 mole of methane gas into its constituent atoms. So in this manner we can understand the concept of enthalpy of atomization. Remember, it's always an endothermic process because bonds we need to break. That's why. इसके बाद में the next term is enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Yes. Now see, क्या होता है enthalpy of solution? Suppose there is the presence of 1 mole of 1 mole of NaCl. So 1 mole of NaCl जो होगा इसके सॉलिड स्टेट में, इसको अगर हमको डिसॉल्व करना है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यूजुअली अगर हमने यहां पे लिखा है दिस इज नथिंग बट AQ is nothing but aqueous. So suppose 1 mole of NaCl is dissolved in a given amount of solvent. In that case, we are getting here NaCl aqueous solution. In that case, the value of delta H of a solution is nothing but 4 kilojoules per mole. So this is the value of enthalpy of a solution. When 1 mole of NaCl, 1 mole कितना होगा NaCl का? 23 is atomic mass of sodium and 35.5 is atomic mass of chlorine. तो 23 plus 35.5 कितना होता है? 58.5 grams of NaCl हो जाएगा उसका 1 mole. And when 1 mole of NaCl is dissolved in a specific amount of a solvent to make its aqueous solution in this case, then it is nothing but known as enthalpy of a solution. So it is defined as the enthalpy change. The enthalpy change accompanies the dissolution of 1 mole of solid into specific amount of solvent to make the solution of particular concentration. Yes, the enthalpy change accompanying the dissolution of आपको पता है क्या डिसॉल्व होना? Yes, the dissolution of 1 mole of a solid, or you can better say if it's a solid, or you can say solute also here, into specific amount of solvent to make the solution of particular concentration. So in that case, whatever the enthalpy change is there, it is known as enthalpy of a solution. It is known as enthalpy of solution. So for example, when 1 mole of NaCl is dissolved in a specific amount of water, that's why I have written here AQ. AQ is a symbol for aqueous. Aqueous मतलब होता है water, you know. तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा NaCl और NaCl का ये बन गया यहाँ पे aqueous solution. So in this case, it is known as enthalpy of solution. So these terms you have to remember. इसके अलावा अभी सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, इसीलिए
Otherwise, there are certain more definitions are there. For example, enthalpy of dilution, then there are also lattice energy, then there are different types of interaction like solute, solvent interaction. फिलहाल तो हमारे सिलेबस में इसको निकाल दिया है, बट इन द ओल्ड टेक्स्ट बुक इट इज गिवन. आप भी इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए तब तक. अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम इस पे आते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज thermochemistry. Now, the term thermo, now you know that very well. क्या होता है thermo? Thermo is nothing but heat. And chemistry क्या होता है? Chemistry is all about the chemical reaction. So now, यहाँ पे जो term था हमारा, ये अलग था. अभी thermochemistry में थोड़ा सा different topics आपको learn करना पड़ेगा. और बहुत इजी है, समझने की बहुत इजी है वो. थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द study of enthalpy changes in the chemical reactions. Thermochemistry is a branch of chemistry that deals with the study of enthalpy changes in the chemical reaction. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, हीट चेंज होगा, इसके बारे में थर्मोकेमिस्ट्री को बताएगा. और दैट इज आई टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ द न्यू बॉन्ड्स. पुराने बॉन्ड यहां पे जो है ब्रेक हो जाएंगे, नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे. रिमेंबर ऑलवेज, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ऑलवेज नीड्स एनर्जी. जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें हमेशा क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू ब्रेक द बॉन्ड एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड एनर्जी टू बी सप्लाइड. लेकिन जब कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है, इन दैट केस एनर्जी इज गेट रिलीज. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे और कितने नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, इन सबका कैलकुलेशन करने के बाद पूरे केमिकल रिएक्शन में हमें समझ में आता है वेदर हीट इज एब्सॉर्ब और हीट इज रिलीज. So accordingly, we have to classify the chemical reaction into two types. Yes, exothermic reaction and endothermic reaction. The reaction in which heat is given out is known as exothermic reaction, and the reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction. So, in this way, we can classify the reaction into two types: exothermic reaction as well as endothermic reaction. इसके कई सारे और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें. So, इस तरीके से हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे रिएक्शंस को. याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू जो लिखा होता है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड फॉर दिस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव. सो दिस वी हैव टू रिमेंबर. ये टर्म्स हमारे लिए काम के होंगे
आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आपके नोटबुक में। लिख लिया आप लोगों ने। अभी जो नेक्स्ट टर्म दिया है आपके सामने वो है हीट ऑफ रिएक्शन। नाउ थर्मोकेमिस्ट्री में इसके लिए सिंबल हम देंगे वो है डेल्टा एच, बिकॉज इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके लिए हम उसको हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। यस, सो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है देखते हैं हम लोग। सपोज इक्वेशन दिया है आपको A मोल्स ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए जो यहां पे दिया है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को, मतलब जितने भी यहां पे रहेंगे स्मॉल लेटर्स, सो दे विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो इमेजिन कीजिए A moles of capital A react with B moles of capital B to produce C moles of capital C and D moles of capital D। समझो यहां पे रिएक्शन दिया है हमें और इस रिएक्शन में सबके नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफाई किए हैं और इन सबका फिजिकल स्टेट भी अगर यहां पे स्पेसिफाई किया है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस या फिर एक्वस, चाहे जो भी हो, अगर ये प्रॉपर्ली मेंशन किया है तो इसके लिए हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। इसके लिए मैं सिंबल दूंगा डेल्टा एच। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यस समेशन ऑफ total enthalpy of products minus summation of total enthalpy of reactants. Yes, delta H is equal to the difference between sum of enthalpies of the products and sum of enthalpies of the reactant. Sum of enthalpies of all the products minus sum of enthalpies of all the reactant, that is equal to heat of reaction. But remember, इसमें कंडीशंस क्या है? हर किसी सब्सटेंस का जितने भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है इन सबका फिजिकल स्टेट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा ये जो केमिकल रिएक्शन दिया होता है इट शुड बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी रिएक्टर एज वेल एज प्रोडक्ट। सो चलो हम यहां पे लिखते हैं डेफिनेशन का। डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इट इज द एंथैल्पी चेंज या फिर इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज better I will say it is defined as the difference between the total enthalpies of the products that of the reactants. So it is the difference in enthalpies of enthalpies of products and that of the reactant. ये तो मैंने इसका दिया है आइडिया आपको। बेटर आई विल राइट द डेफिनेशन अगेन हियर। यस लिसन, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफाइंड as
the difference between sum of enthalpies of products and sum of enthalpies of reactants with each substance with physical state properly mentioned and the equation, I mean this chemical reaction, the equation must be balanced in terms of number of moles. So it is the difference between sum of enthalpies of products and sum of enthalpies of the reactants with each substance with the physical state properly mentioned. मतलब हर किसी का यहाँ पे होना चाहिए physical state properly mention किया हुआ. जैसे मैंने आपको बोला सॉलिड अगर है तो S, लिक्विड अगर है तो L, अगर गैसियस है तो G, AQ आएगा एक्वस के लिए इन दिस मैनर. तो ये आएगा हीट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, डेल्टा H का यहाँ पे डेफिनेशन. ओके, सो द समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट. तो मुझे अगर इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H का वैल्यू अगर लिखना है तो कैसे आएगा? यस, सो आई विल राइट हियर डेल्टा H इज इक्वल टू, यस, यहां पे जो छोटा नहीं दिया है c, स्मॉल c, सो स्मॉल c इनटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट C प्लस स्मॉल d इनटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट D. ये हो गया प्रोडक्ट का टोटल एंथैल्पी, इनका सम माइनस स्मॉल a इनटू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट A प्लस स्मॉल b into enthalpy of reactant B. So in this way we can find out the value of delta H. Yes, so this is the equation for the heat of reaction या फिर enthalpy of chemical reaction. Remember, enthalpy of chemical reaction is the temperature. So this is nothing but the formula we have to write. Now the next term is, yes, the next term is standard state of a substance. Standard state of substance. It is the form of substance in which it is most stable, usually at 1 atmospheric pressure and 25 degrees Celsius temperature. Yes, it is a form of the substance in which it is most stable, usually at 1 atmospheric pressure and 25 degrees Celsius as a temperature. पता है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर, और नॉर्मली जो होता है प्रेशर ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये है कंडीशन. इस कंडीशन में हमें पता है
ही हाइड्रोजन गैस, मतलब सी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन यहां पे अगर है प्रेजेंट तो रहेगा डायटोमिक फॉर्म में, तो H2 गैसियस इज नथिंग बट इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। हमें पता है कि वो इट विल एग्जिस्ट एज अ gas at this condition, that is equal to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करेंगे मिथानॉल की तो CH3OH मिथानॉल, यू नो दैट इट्स अ मिथाइल अल्कोहल, ये होगा प्रेजेंट लिक्विड स्टेट में, तो ये होगा इसका स्टैंडर्ड स्टेट। अगर हम बात करेंगे वाटर की H2O, सो वाटर इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, तो यहाँ पे H2 यहाँ पे क्या हुआ है, यस इट इज नथिंग बट H2O इन अ लिक्विड स्टेट इज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट, सो ग्रेफाइट यू नो दैट कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट, तो इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ यू नो कार्बन, सो इट इज आल्सो टेकन एज अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। So it is the form of the substance in which it is most stable. आपको पता है क्लोरीन क्या होता है, इसके अलावा क्लोरीन is also gaseous state, ऑक्सीजन भी होता है गैसियस फेज में। अगर हम बात करेंगे बेंजीन की तो ये होता है लिक्विड स्टेट में, तो ये सब हो गए इनके स्टैंडर्ड स्टेट। अगर ये सभी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे उनके अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन ये भी हो जाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। सो वी कैन आल्सो राइट इट एज डेल्टा H नॉट, जिसे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से हियर स्टैंडर्ड एंथैल्पी change. So this is the condition for the standard state. Okay. So ये सब एग्जाम्पल आपको पता है, नॉर्मली जितने भी आपके सामने हैं आपको पता है ओजोन भी गैस होता है, तो ये भी यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नो दैट जितने भी होते हैं नोबल गैसेस दे आर आल्सो प्रेजेंट इन अ यू नो गैसियस स्पेस, हो ये हो गया इनका स्टैंडर्ड स्टेट। लेकिन देखिए अगर वाटर अगर है तो वाटर इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, अगर वो प्रेजेंट है वेपर फॉर्म में, तो वेपर फॉर्म का वाटर जो है इट इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो ये भी एग्जांपल आप इस पे नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर्ली। डेफिनेशन इन दोनों में से मैं कहूंगा यही लिखो आप लोग, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन, दिस विल गिव जस्ट आइडिया ओनली, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। Please note down all these things properly in your notebook. तो लिख लिया आपने, जो टर्म हमने यहाँ पे लिखा था वो था स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। It is nothing but the heat of reaction when all the substances involved are in their standard state. उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंबल डेल्टा H नॉट। इट इज डिफाइंड एज द हीट ऑफ द रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन when all the substances involved are in their standard state. And the next term is एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है भी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट आर नोन एज एक्सोथर्मिc reaction. See, for example, when 1 mole of a carbon solid combined with 1 mole of oxygen gas, it gives 1 mole of carbon dioxide gas, and in this case this much amount of heat is given out. How much it is? -393.5 kilojoule is the amount of heat
that is evolve. So it is known as the exothermic reaction. So in this way we can also find out the value for the exothermic reaction. Please wait a second. This second example is also of an exothermic reaction, but you can see now you must be familiar with this example, because in this reaction 1 mole of base react with the 1 mole of an acid to form a salt and water. So this reaction is also known as neutralization reaction. This is known as neutralization reaction. When acid combine with a base to produce salt and water, that reaction is known as neutralization reaction. So in that case, remember, whenever a strong acid react with a strong base, then the value for the enthalpy change is fixed. Its value is minus 57.32 किलोजूल. ये एग्जाम्पल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपको याद करना है, चाहे कौन सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो. Whenever strong acid will combine with a strong base, strong acid may be hydrochloric acid, sulfuric acid or nitric acid. Strong base may be NaOH और KOH. अगर इनमें रिएक्शन होंगे तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू है वो वैल्यू बिल्कुल फिक्स है. ये आपको इक्वेशन लर्न करना पड़ेगा. इसका वैल्यू है minus 57.32 kilojoules. So both these examples are of exothermic reaction. You must have seen the sign here. Sign is given as minus. But remember, हमेशा में रखिएगा, जब हम डेल्टा H के फॉर्म में इसको लिखेंगे तब ये लिखेंगे माइनस में. लेकिन अगर मुझे यही वैल्यू इधर लिखना होता है इक्वेशन में, अगर मुझे लिखने का है इस इक्वेशन में ये वैल्यू, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा सपोज हियर 1 mole of a carbon react with a 1 mole of oxygen gaseous to give CO2 plus 393.5. इक्वेशन में जब लिखना हो तब आपको उधर लिखना पड़ेगा प्लस, लेकिन अलग सेपरेटली डेल्टा H के टर्म में अगर उसको लिखना है तो इसके लिए माइनस साइन देना है आपको. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. डेल्टा H का वैल्यू अगर नेगेटिव है दैट मीन द रिएक्शन इज exothermic reaction, but this value if we write in the equation, then the value will come with the sign positive. So the reaction in which heat is given out or heat is evolved is known as exothermic reaction, while the reaction in which heat is get absorbed, it is known as endothermic reaction. इसका मतलब ये हुआ when 1 mole of N2, specifically I am telling for this example only, when 1 mole of N2 combines with 1 mole of O2, then there is a formation of 2 moles of NO gas. And in this reaction, plus 180 kilojoule of heat is absorbed. देखिए सोचिए, अगर मुझे यही रिएक्शन लिखना होता, ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन में लिखने के बाद, तो मुझे लिखना पड़ता कैसे बताएं, N2 gaseous plus O2 gaseous, yes, gives twice NO gaseous. और ये वैल्यू जो मैंने अलग से लिखा है डेल्टा H के लिए, मुझे अगर इस इक्वेशन में लिखना होता तो मुझे लिखना पड़ता माइनस 180 किलोजूल. इक्वेशन में अगर लिखेंगे तो साइन यहां पे मैंने क्या लिखा है, माइनस, मतलब साफ है. अगर ये यहां पे माइनस है मतलब इधर जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस. तो इसका मतलब ये हुआ when 1 mole of N2 combines with 1 mole of O2 and 180 kilojoule, this much amount of heat is given, then it will give twice NO gaseous. तो इस तरीके से हमको इक्वेशन को लिखना है. यही एग्जांपल आपको हर बार लिखने, ये
दो चार एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे विथ देयर एंथैल्पी चेंज वैल्यू। साइन जो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन है या प्लस साइन है, ये देना कंपलसरी है। ओके, सो अभी हम लेंगे इसके लिए वी हैव टू सी व्हाट आर द गाइडलाइंस टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इससे पहले अभी यहाँ पे जो लिखा है मैं इसको मिटाता हूं। नाउ look at this. The reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction। एक हमारा हो गया, ये है इसके एग्जांपल। यहाँ पे भी कही गया आपको 2 moles of carbon solid react with 1 mole of H2 gas to give SC2H2। क्या है इसका मतलब? It is nothing but acetylene। तो यहाँ पे डेल्टा इसका वैल्यू कितना हुआ है? 226 किलो जूल्स, ये इसके लिए वैल्यू है। सो रिमेंबर दिस इज द वैल्यू फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई मीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमें देखने का है टर्म वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म थर्मोकेमिकल इक्वेशन? यू कैन सी द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, the equation in which exact value of enthalpy change, the equation in which exact value of enthalpy change with the sign is mentioned and the equation is also balanced in terms of number of moles of every substance. Such a kind of equation is known as thermochemical equation. So the equation in which exact value of enthalpy change along with the sign, that is either positive sign or negative sign, the equation in which exact value of enthalpy change along with the sign is mentioned and the equation is balanced in terms of number of moles of reactants and products, and the equation is balanced in terms of number of moles of reactants and products. If it is given, it's called thermochemical equation. Then the equation is called as thermochemical equation. The equation in which exact value of enthalpy change along with the sign is mentioned and the equation is balanced in terms of number of moles of reactants and products is known as थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ये है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हो इक्वेशन का ये जो वैल्यू दिया है डेल्टा एच नॉट का, ये भी मेंशन किया है। हर एक सब्सटेंस का मेंशन किया है नंबर ऑफ मोल्स। इसके अलावा होना चाहिए यहाँ पे और एक चीज, वो है फिजिकल स्टेट। सो द इक्वेशन इन विच एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ enthalpy change along with the sign and physical state, I will say physical state is mentioned and the equation is balanced in terms of number of moles of reactants and products.
इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, वापस एक बार, द इक्वेशन इन विच एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज along with the sign and physical state is also mentioned. Now physical state अगर हम बात करेंगे तो हर एक सब्सटेंस की the equation is balanced in terms of yes number of moles of reactants and products is known as a thermochemical equation. तो इसको हम बोलेंगे thermochemical equation. Now this example also you can give there, no problem, you can give the same example. ठीक है, फिजिकल स्टेट का भी यहां पे मेंशन करना होगा हमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन. एंड द नेक्स्ट टर्म इज यस देन द नेक्स्ट टर्म इज द गाइडलाइंस टू राइट thermochemical equation. See, now we have to see the guidelines to write the thermochemical equation. Thermochemical equation का definition और यहाँ पे आपका clear हो जाएगा. How to write the thermochemical equation? So number one here, the chemical equation should be yes, it should be balance. The chemical equation should be balanced in terms of number of moles. Then second thing, the exact value of enthalpy change should be properly mentioned. The exact value of enthalpy change should be properly mentioned and with साइन. साइन का मेंशन होना बहुत जरूरी है, उससे हमें समझ में ये आएगा कि गिवन रिएक्शन ये आइदर एक्सोथर्मिक है या फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इसका साइन होना यहाँ पे बहुत जरूरी है. द थर्ड थिंग इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ every substance is properly mentioned. जैसे कि अगर वो है सॉलिड इसके लिए S लिखो, लिक्विड अगर है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा L, फॉर गैसेस you have to write G, and for aqueous solutions आपको लिखना पड़ेगा AQ. So this kind of symbols you have to write below the formula like this. तो ये होगा इसका तरीका लिखने का. Now the sign of delta H value assumes the direction of reaction. क्या मतलब इसका? देखो, अगर यहां पे मैंने इक्वेशन लिखा है, अभी यहां पे ये साइन दिया है निगेटिव, मीन्स व्हाट हियर, अगर ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका साइन क्या दिया है? साइन दिया है निगेटिव, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि साइन इसका निगेटिव है. आई एम सॉरी, अगर साइन होता है डेल्टा एच नॉट का वैल्यू होता है निगेटिव, तो हमने देखा है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे हमने देखे थे दो एग्जांपल्स, वैसे ये भी एग्जांपल क्या है? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, सो दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट, दिस वैल्यू इंडिकेट्स दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा. देन नाउ सपोज अगर हमने इस इक्वेशन को लिखा, रिवर्स कर दिया, उसको रिवर्स अगर हमको इसको लिखना है तो क्या इसे लिखना पॉसिबल है? तो देखो, अगर हमने इस इक्वेशन को कर दिया रिवर्स, तो डेल्टा एच का साइन जो है, साइन आपको चेंज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे इस इक्वेशन में
डायरेक्शन जो है सर चेंज कर दिया, तो यहाँ पे डेल्टा मतलब ये एरो अगर मैंने दिखा दिया इस तरफ, तो ये डेल्टा एच का रॉड का जो वैल्यू है, डेल्टा एच का जो वैल्यू है, दिस वैल्यू यू हैव टू टेक एज प्लस 393.5. ओके, सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्स, then the sign delta H it will also change. अगर वो पहले निगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो हो जाएगा निगेटिव. सो इन दिस वे हमें चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन उसका. सो ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन द साइन ऑफ डेल्टा H also be change. Then if the stoichiometric equation is multiplied with a suitable factor, then the value of delta H is also multiplied. For example, इनमें से कोई भी इक्वेशन आप लीजिए, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, एट द सेम टाइम डेल्टा H के वैल्यू को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो stoichiometric equation is multiplied by suitable factor, multiplied or divided by a suitable factor, then the value of delta H is also multiplied or divided by the same factor. So these are nothing but the guidelines that you have to remember. ये सब गाइडलाइंस आपको याद करने पड़ेंगे. ये 6 के 6 जो लिखे हैं मैंने, ये है गाइडलाइंस दैट यू हैव टू रिमेंबर. टेक्स्ट बुक में और क्लियर दिए होंगे, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा. मेरे ख्याल से हमको आज यहाँ पे जाना चाहिए. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू सी द नेक्स्ट पॉइंट. ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग. ओके, एंड प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.